evening, everyone. I, on behalf of Padmashri Bhavsar Vartak College and NG Vartak Junior College, in association with our Department of Library, welcome you all to the webinar on the one thing and the one habit. Reading. It is said that a reader lives 1,000 lives before he dies. The man who never reads lives only once. I really agree with this saying. Reading will make you a nicer person. No matter how much stress you have at your workplace, in your personal relationships, or any other countless issues in your life, it all just slips away when you lose yourself in a great story. So, today we are having Mr. Anand Singh Rajwat sir with us, who will give us a review on a very special book, The One Thing by Gary Keller. I find immense pleasure in introducing our honorable chief guest, Mr. Anand Singh, with amongst us, who has been awarded as the best research advisor by Indian Academic Researcher Association in April 2018, as well as he was awarded as an ideal teacher at state level in Nasik in October 2008. Sir was a college coordinator for NSS in the year 2017-18 and also was program officer from the year 2013 till 2018 and was conducting various activities directed by Mumbai University and Government of India. Sir is very passionate about reading. Along with it, he has passion for trekking, guitar, playing badminton, writing, and also for social service. Not only this, Sir has completed his BSc in botany in 2018 and MMS in marketing in 2011. Sir has a total work experience of academic institutions for 8 years and in corporate of 17 months. Sir has been a part of Sharp Business System India as management trainee for approx 6 to 7 months. And along with it, Sir was a business development manager for around a year. With it, Sir has been working in Viva College as an assistant professor for BMS and has been teaching various subjects including principles of marketing, consumer behavior, media planning and management, organization behavior, foundation of human skill since June 2012 and also has been a visiting faculty at Mukesh Patel College for 3 years and for subject organization behavior. Sir is not only in academics and not only had great experience but also has various achievements at various levels. Sir was the cultural secretary of the college for the year 2006 and 7. Sir has won second prize in intercollegiate B school branding and business plan presentation. Sir was the winner of college intercollegiate drama and science and dance. Sir was also the winner of inter-school science project at ward level and also elocution competition at ward level. It is a blessing for all of us to have Sir amongst us. We are very grateful. So, with your presence, I request you to please take over and please start with the session. थैंक यू सो मच फरीन मैम, काफी बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया आपने. इतना अच्छा तो मैं भी शायद अपने बारे में नहीं सोचता जितना अच्छा आपने बताया. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच शीतल मैम. थैंक यू सो मच द एंटायर ग्रुप ऑफ भावसर वर्तक कॉलेज. आप लोगों ने मुझे सेकंड टाइम अपॉर्चुनिटी दी है ताकि मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकूं एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आप लोग मुझे इतना काबिल समझते हैं कि मैं बच्चों से इंटरेक्ट कर सकूं. चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर मिनट हम आते हैं हमारे आज के सेशन पे. तो पहले तो अच्छा मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है. मुझे ये देख के अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स काफी फुल हो गए हैं. यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन बढ़ता ही जा रहा है. हमारे ग्रुप में काफी सारे बढ़ गए थे. एक अच्छी चीज ये हो रही है कि शायद टिकटॉक बैन हो गया है, इस वजह से बच्चे फ्री हैं तो शायद वो आके लेक्चर को अटेंड कर पा रहे हैं. बट अगर टिकटॉक की वजह से नहीं भी हो रहे हैं तो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. बिफोर स्टार्टिंग टुडे सेशन बुक के बारे में बताने के पहले
ठीक है, मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. So let us start our session with one question. Okay everyone, so let me ask you a question. आप सब लोग टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सारी चीजें करते हैं, ठीक है? तो मैं भी आपके सामने कुछ सेलिब्रिटीज के फोटोज रखने वाला हूँ और आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे कि वो लोग किस लिए फेमस है. नाम तो उनका सभी जानते होंगे, बट आप फटाफट चैट बॉक्स में एक आंसर टाइप करेंगे कि वो लोग किस लिए फेमस है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पर्सनैलिटी. नाउ हु इज दिस गाय? ठीक है, फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए. ठीक है, ये किस लिए फेमस है? मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वो बंदा किस चीज के लिए फेमस है. Okay, so I can see there are a lot of comments started coming. Perfect, perfect. Very good, very good. Oh, that's great. I mean, like everybody knows him. That's the best part, right? Okay, 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 okay. Now let's move to the another person, right? अब मुझे बताइए, जो नेक्स्ट पर्सन है, ये किस लिए फेमस है? Now why she is famous for? चलिए फटाफट चैट बॉक्स में आंसर्स के साथ. ग्रेट, ओह ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. आई कैन सी यहाँ पर काफी सारे आंसर्स आते जा रहे हैं, कमेंट आते जा रहे हैं, भरते हैं, इसको सब जानते हैं. आलिया भट्ट को कौन नहीं जानता है, राइट? परफेक्ट, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. वेरी गुड, वेरी गुड. यूट्यूब पे भी भरमार होती जा रही है कमेंट की. चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ. ओके, कैन एनीवन टेल मी हु व्हाई ही इज फेमस फॉर? मैं उनका नाम नहीं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि ये फेमस किस लिए. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. परफेक्ट, परफेक्ट. ओके, थोड़े से वेरिड आंसर हैं, लेकिन बिल्कुल सही है. कोई कंपनी का नाम बता रहा है और कोई काम बता रहा है, बट परफेक्ट. फेसबुक, यस, मार्क जकरबर्ग, एवरीबॉडी नोज हिम वेरी वेल. ओके, सो द नेक्स्ट सेलिब्रिटी. अब थोड़ा सा आप लोग जरा ध्यान से आंसर करेंगे, ठीक है? नाउ हु इज ही एंड व्हाई ही इज फेमस? Who is he and why he is famous? The last person. Okay, perfect, very good. So I got an answer from Harshal in the beginning, right? He is Michael Phelps. Guys, he is Michael Phelps, very famous swimmer. ठीक है, इन्होंने स्विमिंग में सारे ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं. ही इज द सिंगल पर्सन जिनके पास में इतने ज्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं, ठीक है, जितना लोगों के पास में नहीं है. इज द हाईएस्ट रनिंग गोल्ड मेडल विनर माइकल फेल्प्स. ठीक है, इज वेरी फेमस स्विमिंग. इन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया है. नाउ अब मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आता हूँ. मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि आप इन्हें जानते हैं कि नहीं. मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर विराट कोहली, ठीक है, क्रिकेट के साथ साथ एक्टिंग भी करता, कोडिंग भी करता जैसे मार्क जकरबर्ग करते हैं, और माइकल फेल्प्स की तरह स्विमिंग भी करता, तो क्या विराट कोहली कभी विराट कोहली बन पाता? राइट? मैं फिर से रिपीट करता हूं मेरा क्वेश्चन. अगर अगर विराट कोहली क्रिकेट के अलावा एक्टिंग, कोडिंग और स्विमिंग करता, तो क्या भाई वो फेमस हो पाता? नो, एवरीबॉडी सेज नो. परफेक्ट, ग्रेट, एवरीबॉडी सेज नो. सो एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, अगर हम ये सब समझते हैं कि अगर हम इतनी सारी चीजें करके फेमस नहीं हो सकते, राइट, तो हम ये सारी चीजें करने क्यों जाते हैं? अब समझ रहे हैं मेरा क्वेश्चन? माय पॉइंट इज, अगर हमें पता है कि क्रिकेट के बिना विराट कोहली अगर सारी चीजें करने जाता, तो हम ये नहीं कर पाते, फिर भी हम ये करते हैं. नो, आई मीट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, हमसे इंटरैक्ट करते हैं, और जैसे हम डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूँ, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ाता हूँ, काफी सारे बच्चे मिलते हैं. हर सेमेस्टर में उनके गोल चेंज होते जाते हैं. पहले सेमेस्टर में मिले, सर हमें क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, हमें क्रिकेटर बनना है. अगले सेमेस्टर में मिलते हैं, सर हमें डांसिंग का शौक आया, तो हमें डांसर बनना है. अगले सेमेस्टर में चले जाते हैं, सर अब लग रहा है कि हम लोग स्पेशलाइजेशन ले रहे हैं, फाइनेंस ले रहे हैं, मार्केटिंग ले रहे हैं, तो चलिए हम लोग बैंकर बन जाएंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाएंगे. कोई राइटर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है. आपके जो गोल्स होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं. लाइक डांसर, म्यूजिशियन बनना है, साइंटिस्ट बनना है, कभी किसी को फोटोग्राफर बनना है, क्रिकेटर बनना है. ये सारे गोल्स हमारे दिमाग में आते रहते हैं, और हम अलग अलग ट्राई करते रहते हैं कि कभी हम ये बन जाए. और ये सबके साथ होता है, ये आप अकेले नहीं है. यहाँ पे जितने भी लोग इस वक्त इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप भी एकदम नॉर्मल हैं जैसे बाकी लोग हैं. हम जैसे जैसे एज में बढ़ते जाते हैं, ठीक है, हमारे ना गोल्स चेंज होते जाते हैं. अगर मैं टीवी पे देख रहा हूँ इस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा है, तो मुझे लगेगा कि क्यों ना चलो मैं क्रिकेट खेलना शुरू कर दूं.
अगर मैं देख रहा हूँ फुटबॉल तो मुझे लगेगा मैं फुटबॉल खेलना चालू कर देता हूँ। अगर एक्टिंग तो एक्टिंग का भूत चढ़ा है तो एक्टर बन जाऊँगा। शायद कैमरा हाथ में आने से मैं फोटोग्राफर बन जाऊँगा। ना हमारे गोल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। ये सारे गोल्स करने के बाद में, ठीक है, इतनी मल्टीटास्किंग करने के बाद में, आपको लगता है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं? नहीं, आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। एंड दैट इज़ वेयर द वन थिंग कम्स इंटू द पिक्चर, राइट? आप लोगों को अपने गोल्स को, अपने फोकस को एकदम सही तरीके से समझना होगा। ये होता है जिस एज में आप लोग हैं, क्योंकि हमारा सेशन आज का कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है? तो जिस एज में हम लोग हैं, ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारे गोल्स से मोटिवेटेड होते हैं। हमें हर थोड़े दिन में लगता है हमें ये कर लेना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। लेकिन हमारा फोकस कभी भी एक चीज़ पर नहीं होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न हम लोग एक एवरेज लाइफ में खत्म हो जाते हैं। हम लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाते। तो देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज पीपल एंड सक्सेसफुल पीपल, राइट? जैसे अभी हमने बात किया कि जो एवरेज लोग होते हैं वो लोग बहुत सारी चीजें एक साथ करना चाहते हैं। दे वांट टू डू मल्टीटास्किंग। उनको कोई भी फील्ड नहीं छोड़नी है। उन्हें जो इंटरेस्ट लग रहा है वो सारी चीजें वो ट्राई करना चाहते हैं, राइट? दे डू मल्टीपल थिंग्स एक टाइम पे, सारी चीजें। मुझे आज मैं मेरे एक काफी क्लोज स्टूडेंट का एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहता हूँ। जो स्टूडेंट है मेरा, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, वो समझ जाएगा सेशन अगर अटेंड कर रहा है तो। ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। आई एम लाइक ही इज़ वेरी गुड इन राइटिंग, ही इज़ वेरी गुड इन मिमिक्री, ही इज़ वेरी गुड इन एक्टिंग, मैनेजमेंट, ही डू लॉट ऑफ थिंग एंड बहुत अच्छे लेवल पे करता है। द प्रॉब्लम इज़ जब भी वो किसी कॉम्पिटिशन में जाता है, तो ना वो मिमिक्री कॉम्पिटिशन में जीत पाता है, ना ही वो राइटिंग कॉम्पिटिशन में जीत पाता है, ना ही वो डांसिंग कॉम्पिटिशन में जीत पाता है और ना ही वो मैनेजमेंट कॉम्पिटिशन में जीत पाता है। यू नो व्हाई? बिकॉज़ ही इज़ ट्राइंग सो मेनी थिंग्स। वो हर चीज़ में घुसना चाहता है। नो डाउट ही इज वेरी फेमस, बट ही इज नॉट सक्सेसफुल। आई मीन एक आध बार कभी वो एवरेज लाइफ के थोड़ा आगे भी बढ़ जाएगा। वी नो दैट ही नोज सो मेनी थिंग्स, बट कभी वो सक्सेसफुल उस चीज को लेकर नहीं हो पाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम विद एवरेज पीपल। दे डू मल्टीपल थिंग्स एंड उनके गोल्स भी स्विच होते रहते हैं। आज कुछ नया आ गया, चलो। अब जैसे थोड़े दिनों पहले मैंने देखा था, गली बॉय जब मूवी आई थी, तो रैप का बहुत ज्यादा क्रेज हो गया था। मतलब हर बच्चा रैपिंग में घुसना चाहता है। आई एम टॉकिंग अबाउट डिग्री कॉलेज एंड जूनियर कॉलेज स्टूडेंट्स, राइट? हर बच्चा रैपर बनना चाह रहा है। वो एमी वे बंटा है या पता नहीं क्या-क्या, जो भी आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके तरीके से रैप कर रहे हैं। जिन लोगों को लगता भी नहीं था कि दे आर गुड इंटू रैपिंग, दे आल्सो स्टार्टेड राइटिंग, राइट? सो दैट इज़ द इम्पैक्ट। थोड़े दिनों बाद अगर कोई दूसरी मूवी आ गई या उरी आ गई, तो चलो अब इंडियन आर्मी जॉइन करना है। आई मीन लाइक दे स्विच देयर गोल्स, राइट? दैट इज़ द रीज़न उनके गोल्स इतने स्विच होते रहते हैं कि वो एवरेज लाइफ पे आके खत्म हो जाते हैं। एंड दे वांट टू बी फेमस। नाउ व्हाई दे वांट टू डू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स? इतने अलग-अलग चीज़ें वो करना क्यों चाहते हैं? एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ें देख के लगता है कि यार ये करने से हम फेमस हो जाएँगे, ठीक है? तो नॉट ओनली दिस थिंग, इसके अलावा वो मल्टीपल चीज़ें भी ट्राई करना चाहते हैं, बट दिस इज़ द रीज़न एवरेज लोग एवरेज ही रह जाते हैं। एक एवरेज लाइफ में हर चीज़ को बैलेंस करने के चक्कर में। व्हेयरएज़ अगर मैं सक्सेसफुल लोगों की बात करूँ, वो एक बहुत सिंपल सी चीज़ करते हैं एंड दैट सिंपल थिंग इज़ फोकस, राइट? एक चीज़, एक टैलेंट, एक स्किल और उसी के ऊपर पूरी लाइफ फोकस। फोकस की पावर हम सब समझते हैं। अगर हम लोगों ने बचपन में साइंस में एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट देखा था कि अगर हम चीज़ों को फोकस करना शुरू करें, तो उसका इम्पैक्ट कितना ग्रेटर हो सकता है। जैसे आप सब लोगों ने एक ये बेसिक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, राइट? जब हमने स्कूल में देखा था कि अगर हम एक कागज को धूप में रख दें, ठीक है? तो उस कागज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कागज आपकी लाइफ की तरह है, ठीक है? जब तक आप इसको इन द सन स्ट्रगल, आप इसे कितना भी धूप में तपाते रहें, आप कितना भी स्ट्रगल करते रहें, लेकिन आपका ना जो फायर है आपके अंदर, वो कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि देयर इज़ वन थिंग व्हिच इज़ मिसिंग एंड दैट मिसिंग थिंग इज़ फोकस। जिस दिन आपको फोकस का मैग्नीफाइंग ग्लास मिल गया, आपका कागज जल उठेगा, आपके अंदर की फायर बाहर आ जाएगी एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू विल बिकम सक्सेसफुल। देखो, सक्सेसफुल बनना सबका ड्रीम होता है कि हम बड़ी-बड़ी चीजें करें, हम बहुत सारी ऐसी चीजें करें जिससे पैसा आए, हम बहुत सारी ऐसी चीजें करें जिससे हम फेमस हो जाएं। लेकिन वो आएगा कैसे? हमें ऐसा टैलेंट क्या है? हम लोग बहुत सारी चीजें ट्राई करने जा रहे हैं। हम ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हम एक चीज पे फोकस करें ताकि हमारा जो सक्सेस है वो बढ़कर आए। एंड दैट सक्सेस या फोकस जिसे हम बोलते हैं, जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा, ठीक है? वही कहलाता है आपका वन थिंग, राइट? सो द फोकस व्हिच विल मेक यू सक्सेसफुल, दैट इज योर वन थिंग। और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है? सो गैरी केलर ने ये बुक लिखी है, द वन थिंग। इट्स अ वेरी 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 गुड बुक। बहुत सारे बच्चे आके क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम कौन सी बुक से शुरुआत करें। मैं जनरली बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप उसी बुक से शुरुआत करें जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड दिस इज द थिंग व्हिच यू कैन इम्प्लीमेंट। आपको कुछ ज्यादा जाना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है, आपको किसी की जरूरत नहीं है कि आपकी वन थिंग आपको वो बता सके। ये सिर्फ आपको सोचना है। आपको पता है कि आपकी वन थिंग क्या है,
एंड उस वन थिंग पे आपको फोकस करना है। अब वो फोकस का क्या इम्पैक्ट होता है वो हम देखते हैं गैरी केलर के हिसाब से। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो डोमिनोज पिज्जा नहीं, डोमिनो डोमिनो को जब हम रखते हैं लाइन में, एक सिंपल सी चीज है। डोमिनो है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है। एक डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है। मतलब अगर मैं पहले डोमिनो को 2 इंच का रखूं और उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में डोमिनोज बढ़ाता जाऊं, तो अपने से 50% बड़े डोमिनोज को गिराता जाएगा। मतलब पहला वाला अगर 2 इंच है तो अगला वाला 3 इंच होगा, उसके बाद 4.5 इंच, और धीरे 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 ऐसे बढ़ते 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 जो भी डोमिनोज रखे जाएंगे उनको वो गिरा देंगे। ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी किया जा चुका है। अप टू 9 डोमिनोज अरेंज किए गए थे और देखा गया था कि होता है कि नहीं, एंड दे ब्रिंग अ पावर, राइट। तो 2 इंच के डोमिनो से अगर मैं शुरू करूं, तो जब मैं 18th डोमिनो तक पहुंचूंगा तो उसकी हाइट होगी लीनिंग टावर ऑफ पीसा जितनी, राइट। यानी आप इमेजिन कीजिए कि अगर हम 2 इंच से शुरुआत करते हैं तो हम 18th डोमिनो तक पहुंच सकते हैं लीनिंग टावर ऑफ पीसा जितनी। अगर मैं 23rd डोमिनो की बात करूं तो 23rd डोमिनो की हाइट बढ़ते बढ़ते हो जाएगी आईफिल टावर जितनी। इमेजिन आपके 2 इंच का डोमिनो 23rd डोमिनो तक जा सकता है। अगर मैं 31st डोमिनो की बात करूं तो 31st डोमिनो माउंट एवरेस्ट से 3000 फीट बड़ा होता है। और अगर मैं 57th डोमिनो की बात करूं तो वो होगा अर्थ से लेके मून तक का डिस्टेंस। ना इमेजिन दिस डोमिनो इफेक्ट। राइटर ने क्या कहना चाहता है, आपको शुरुआत जो करनी है वो बहुत छोटे से गोल से करनी है। आपका गोल कितना भी बड़ा हो, अगर आपको अर्थ से लेके मून तक का डिस्टेंस भी हिलाना है तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। आप ये मत सोचिए कि मेरा ड्रीम बहुत बड़ा है, ये करना है। आपको कम, यू हैव टू कम बैक टू द 2 इंच का डोमिनो व्हिच इज वेरी सिंपल, जिसको गिराना एक सिर्फ टिक का काम होता है। तो हल्का सा एक मूवमेंट आपके अर्थ से मून तक के डिस्टेंस जितने बड़े ऑब्जेक्ट को गिरा सकता है, एंड दिस इज कॉल्ड डोमिनो इफेक्ट, राइट। तो इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन implement the domino effect properly, right? Now imagine this is a someday goal, your 57th domino, ठीक है, आपका someday goal है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को राइटर बनना है, फॉर एग्जांपल किसी को क्रिकेटर बनना है, फॉर एग्जांपल किसी को डांसर बनना है, किसी को बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है। ये आपका someday goal है, ये आपका 57th डोमिनो है। वो एक ही दिन में अचीव नहीं होगा, आपको उसके लिए धीरे 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 अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको अपने गोल को डिवाइड करना पड़ेगा 5 years गोल में, 1 year गोल में, एंड फाइनली आपको डिवाइड करना पड़ेगा उसको राइट नाउ गोल पे। एंड दैट राइट नाउ गोल 2 इंच का डोमिनो आपको एक दिन समडे गोल पे मिलाएगा। तो अगर आपको राइटर बनना है तो ये जरूरी नहीं है कि आप सारी बुक्स लिखना जानते हैं तो ही होगा। स्टार्ट राइटिंग विद 1 पैराग्राफ। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो एटलीस्ट बैटिंग बॉलिंग आपको जो करना है उसका प्रैक्टिस करना शुरू करो। इफ यू वांट टू बिकम एन एक्टर, राइट, तो अभी से एक्टिंग की प्रैक्टिस करना शुरू करो, वीडियोस बनाना शुरू करो। जब आप धीरे 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 आगे बढ़ेंगे तब जाके आप अपने समडे गोल को पहुंचेंगे। इफ यू वांट टू बिकम इन्वेस्टमेंट बैंकर, थोड़े थोड़े पैसों से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। मे बी शायद एक दिन आप वॉरेन बफेट को भी पीछे छोड़ दें। दैट इज हाउ डोमिनो इफेक्ट वर्क, बिकॉज इट वर्क्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको सिर्फ अपने पहले गोल को हिलाना है, आपको पहले डोमिनो को हिलाना है, ऑटोमेटिकली सक्सेस मल्टीप्लाई होती जाएगी। धीरे 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 आपका 1 year गोल कंप्लीट हो जाएगा, आपका 5 year गोल कंप्लीट हो जाएगा, और एक न एक दिन आपका समडे गोल भी अचीव हो जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट को समझाने के लिए अ, एक सिंपल सी चीज समझाता हूँ कि सबसे पहले तो अपने गोल को जितना छोटे गोल में पॉसिबल कर सके उसमें डिवाइड कीजिए। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको राइटर बनना है तो आप ये अपने गोल को डिवाइड कीजिए कि आप लिखना कहाँ से शुरू करेंगे। एकदम स्मॉलेस्ट गोल, आप लिखने की आदत से शुरू कीजिए। राइटर बनना बात की बात है, धीरे 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 शायद आप राइटर भी बन जाए, राइट। अगर आपको बिलियनियर बनना है तो आपको सबसे पहले बनना पड़ेगा मल्टी मिलेनियर, और मल्टी मिलेनियर से पहले आपको बनना पड़ेगा मिलेनियर। दैट इज द फंड ऑफ डोमिनो इफेक्ट। जब तक आप थोड़ी इनकम नहीं कमाएंगे तब तक आप बिलियनियर नहीं बनेंगे। एक बार अगर आपने डोमिनो गिराना शुरू कर दिया वो चलता रहेगा। एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सक्सेस इज सीक्वेंशियल। आपकी जो सक्सेस है ये एक सीक्वेंस की तरह है। एक बार जब डोमिनो गिरेगा तो धीरे 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 आगे बढ़ता जाएगा। सो ज्यादा आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ, वो लोग यही करते हैं कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग इतना बड़ा गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ बड़ा गोल अचीव करना ही नहीं है, आपको तो बस शुरुआत करनी है। आप शुरुआत तो करके देखिए, एक छोटे से डोमिनो को तो गिरा के देखिए, शायद आप अर्थ से मून तक के डिस्टेंस को भी हरा सकते हैं। इसको कंक्लूड करने, इसको कंफर्म करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। एवरेज स्टूडेंट्स को लिया गया, आपके जैसे कॉलेज के काफी सारे स्टूडेंट थे जिनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एवरेज स्टूडेंट्स को ही, एक स्टूडेंट को बोला गया कि आप सिर्फ अपने रिजल्ट को विजुअलाइज कीजिए कि आपको ए प्लस ग्रेड मिला है। तो जो ग्रुप सेट ऑफ स्टूडेंट्स थे वो सिर्फ ये विजुअलाइज कर रहे थे कि उनको ए प्लस ग्रेड मिला है। दूसरे सेट ऑफ स्टूडेंट्स को बोला गया कि आपको विजुअलाइज करना है कि आपको ए प्लस ग्रेड मिला है,
लेकिन साथ ही साथ आपको प्रोसेस को भी विजुअलाइज़ करना पड़ेगा। यानी कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट्स में स्कोर करना है, किस तरीके से करना है, आपकी हैबिट्स क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें विजुअलाइज़ करने के लिए होगी, सिर्फ विजुअलाइज़ेशन। एंड व्हेन द एक्चुअल रिजल्ट केम, यानी जब बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो देखा गया कि जिन बच्चों को सिर्फ रिजल्ट विजुअलाइज़ करने के लिए बोला गया था, वो बच्चे एक्चुअली कुछ अचीव नहीं कर पाए, वो एवरेज मार्क्स वाले रह गए, और जिन एवरेज बच्चों को पूरा प्रोसेस विजुअलाइज़ करने के लिए बोला गया था, उन बच्चों ने काफ़ी अच्छा ग्रेड लाया। काफ़ी बच्चे ए प्लस ग्रेड से भी आगे निकल गए। एंड दैट इज़ द पावर ऑफ डोमिनो इफेक्ट। आपको एक छोटे से गोल से विजुअलाइज़ेशन से शुरू करना है। धीरे-धीरे वो आपकी आदत में आता जाएगा। सक्सेस आपको सीक्वेंशियल हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम सक्सेस की बात करते हैं, तो हमारे सोसाइटी में ना बहुत सारे मिथ लेकर गए। मतलब सक्सेसफुल लोगों की अगर मैं बात करूँ, जैसे भी हमने आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने बोला मार्क ज़करबर्ग, राइट? तो आप लोगों को लगता है कि यार मार्क ज़करबर्ग ने बहुत सक्सेस में बहुत मेहनत की होगी, बहुत सारा एफर्ट डाला होगा, बहुत कुछ किया होगा। उन्होंने ऐसा कुछ अलग यूनिक नहीं किया। अगर मैं बात करूँ बिल गेट्स की, तो ही डिडन्ट डू एनीथिंग यूनिक या स्पेशल, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। अगर हम बात करें जेफ बेज़ोस की, अमेज़न की, उन्होंने भी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं करी। प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी हमें बहुत सारे झूठ सिखाती है। तो राइटर ने, गैरी केलर ने, इस बुक के अंदर उन झूठ को समझाने की कोशिश की कि अगर आप इन झूठ को समझ जाएँ, ये झूठ है, ठीक है? और आपके ब्रेन को किस तरीके से इन चीज़ों की आदत लगाई जाती है, अगर आपको एक बार ये समझ में आ जाए, सो ऑटोमैटिकली आप लोग ये समझ जाएँगे कि ये झूठ है, आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। सो ये झूठ आपके दिमाग में भरे कैसे जाते हैं? चलिए, इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आप सब लोगों ने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी, कछुआ और खरगोश, पंचतंत्र की कहानी, याद होगा? आप सब लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी, ठीक है? और उस स्टोरी का मोरल क्या था? चलिए फटाफट चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि स्टोरी का मोरल क्या था? येस, परफेक्ट। चैट बॉक्स में येस, 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 मुझे आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। परफेक्ट, स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस, स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस। काफ़ी सारे बच्चों ने बोला स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस। परफेक्ट, एकदम सही जा रहे हैं। डोंट डू हरी, डोंट डू हरी, डोंट डू हरी, राइट? हम सब ने ये सीखा। पर एक्चुअली बच्चों, मुझे ये बताते हुए बुरा लग रहा है कि ये जो है, ये एक मिथ है। हम सबने ये मोरल पढ़ा है, स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस। कछुआ क्यों जीता या खरगोश क्यों हारा? कछुआ इसलिए जीता क्योंकि उसके पास बहुत यूनिक एबिलिटी थी, या वो सुपर नेचुरल था, या उसने कुछ ऐसा कर दिया जो कोई नहीं कर सकता था? नहीं, कछुआ इसलिए हारा क्योंकि खरगोश आलसी था। तो हमें सोसाइटी यही गलत चीज़ सिखाती है। हमें सबने ये बोला कि स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस। हमें किसी ने ये नहीं बोला कि रैबिट की गलती थी, हेयर की गलती थी या खरगोश की गलती थी। गलती ये थी कि वो आलसी निकल गया, वो स्लो हो गया। तो कहानी का मोरल ये नहीं होना चाहिए कि स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस। कहानी का मोरल होना चाहिए फास्ट एंड कंसिस्टेंट विन्स द रेस। जिस दिन आप इस सच को समझ लें, हमें बचपन से सिखाया जा रहा है कि स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी। तो आप लोग क्या सीख रहे हैं कि हमें लाइफ में स्लो चलना चाहिए, आराम-आराम से करेंगे सब काम। नहीं, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अगर अगर कछुआ अगर खरगोश अगर आलस नहीं करता, अगर कछुआ नहीं सोता, तो कोई चांस था कि कछुआ जीत जाता? कोई चांस नहीं था। टॉर्टोइस का कोई चांस नहीं था। प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि रैबिट ने सोचा कि यार चलो थोड़ा-सा आराम कर लेते हैं। तो ही वाज़ नॉट कंसिस्टेंट, ही वाज़ नॉट फास्ट। दैट इज़ द रीज़न टॉर्टोइस जीत गया। कहानी का मोरल ये होना चाहिए। तो इसी तरीके से ऐसे काफ़ी सारे झूठ हमें सिखाए जाते हैं, हमारे दिमाग में भर दिए जाते हैं, और हमें लगता है कि यार सक्सेसफुल बनने के लिए तो यही करना होगा। लेकिन एक्चुअली सक्सेस बहुत सिंपल है। तो चलिए देखते हैं गैरी केलर के हिसाब से सक्सेस किस तरीके से पाई जा सकती है। राइट? सबसे पहला झूठ और सबसे इम्पोर्टेंट झूठ है, मल्टीटास्किंग इज़ अ लाई। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सक्सेसफुल बनने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। ब्रूस ली ने ब्रूस ली का एक बार इंटरव्यू चल रहा था, तो उन्हें पूछा गया कि सर इतने सारे लोगों से आप फाइट करते हैं, तो आपको किस टाइप के लोगों से डर लगता है? तो ब्रूस ली ने बहुत छोटा-सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला मुझे इन हज़ार लोगों से डर नहीं लगता है, जो अलग-अलग मूव्स को प्रैक्टिस करके आते हैं। मुझे सिर्फ़ वो उस एक बंदे से डर लगता है, जो एक मूव को हज़ार बार प्रैक्टिस करता है। यानी कहने का मतलब क्या है, आप हज़ार चीज़ें ट्राई करो, ठीक है? आप लाइफ़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे। बट अगर आप एक चीज़ को हज़ार बार ट्राई करें, तो आप डेफिनिटली सक्सेसफुल हो पाएँगे। और ये चीज़ हमें बोली जाती है कि नहीं, मल्टीटास्किंग हमें करना चाहिए, राइट? तो नाउ मल्टीटास्किंग वर्ड आया किधर से? मल्टीटास्किंग वर्ड आया कंप्यूटर्स से, ठीक है? एक्चुअली 80s के टाइम पे जब कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे, तो लोगों ने बोला कि मल्टीटास्किंग मतलब कंप्यूटर में क्या होता है, अगर हम एक ऐप चलाते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी सारे ऐप चलने लग जाते हैं। एट द सेम टाइम हम काफ़ी सारे टैब्स को कर पाते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जो मल्टीटास्किंग वर्ड आया है कंप्यूटर से, कंप्यूटर भी एक साथ सारी चीज़ों को नहीं करता है।
वो एक-एक करके प्रोसेस करता है। पहले वो एक चीज़ को अटेंड करता है, फिर दूसरी चीज़ को, फिर तीसरी कमांड को। पर वो इतना फास्ट करता है कि हमें लगता है कि येस, दिस इज़ इट, दिस इज़ मल्टीटास्किंग। लेकिन वो हर एक चीज़ को एक करके करता है। चलिए तो एक फटाफट हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं इस वक़्त आप लोगों से आंसर नहीं पूछूँगा, आप लोग घर पे बैठ के इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। मैं आप लोग को एक एक्टिविटी करा रहा हूँ छोटी-सी, आपको पता चल जाएगा कि मल्टीटास्किंग कितनी बेनिफिशियल है। चलिए, तो सबसे पहले इन लेटर्स को फटाफट बोल के जितना फटाफट आप बोल सकते हैं घर पे, अब आपके आजू-बाजू वालों को लगेगा कि शायद आप पागल हैं, लेकिन जोर से बोल के देखिए फटाफट एबीसीडी, राइट? इतना फटाफट, तो हार्डली आपको कुछ 0.75 सेकंड्स लगे होंगे, 1 सेकंड भी पूरा नहीं लगा होगा ये बोलने के लिए, राइट? चलिए हम अगला टास्क देखते हैं। अगला टास्क है, इन नंबर्स को फटाफट बोल के देखिए 1 2 3 4 5, राइट? इतना फटाफट, यानी 0.75 सेकंड्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बहुत बच्चा स्लो होगा तो 0.75 सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं लग रहा हमें ये सारी चीज़ें करने के लिए, एबीसीडी या 1 2 3 4 5 बोलने के लिए। लेकिन अब आता है मेन चैलेंज, अब आता है हमारा मेन चैलेंज, ठीक है? Now try this number in alternative way, right? A1, B2, C3, D4, E5, right? Now देखिए कितना टाइम लग गया। अगर हमें ध्यान हमें 1.5 सेकंड लगने चाहिए थे, वहाँ हमें 3 सेकंड से ज़्यादा लग गया। What was the reason? प्रॉब्लम ये था, मल्टीटास्किंग करते टाइम हमें डिसीजन लेना था स्विच करने का। जब हम 2 टास्क को साथ में करते हैं, ठीक है? तो हमें समझ में नहीं आता कि हम किधर स्विच करें। मतलब एबीसीडी एक सीक्वेंस है, बहुत फटाफट हो गया, 1 2 3 4 5 बहुत फटाफट हो गया, लेकिन 1 A1 B2 यू नो, तो इट गेट्स कन्फ्यूजन। इसी तरीके से आपके टास्क के साथ में होता है। जब आप बहुत सारे टास्क को साथ में परफॉर्म करने जाते हैं, तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपको पता नहीं होता है कि आप स्विच करके वापस जहाँ आ रहे हैं, उसकी पोज़ीशन क्या है? एंड एट द सेम टाइम जिस लोकेशन से आपने उस पॉइंट को छोड़ा था, रिकॉल लोकेशन, राइट? एबीसीडी सीक्वेंस था तो बहुत फटाफट हो गया, लेकिन A1 2 B2 ब्ला 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 ब्ला, राइट? दैट इज़ हाउ रिकॉल लोकेशन इज़ डिफिकल्ट। मुझे पता है कुछ बच्चे अभी घर पे ट्राई कर रहे होंगे बोलने का कि A1 B2 C3, ओके ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपके पास एक ही चीज़, आई मीन लाइक आपको बहुत सारी चीज़ें आगे करनी है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, राइट? तो आप इस पे नहीं अटक सकते। तो रिकॉल लोकेशन का प्रॉब्लम होता है। तो ना जैसे हम इवेंट की बात करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे इवेंट वाले होंगे, ठीक है? या बहुत सारे काम करते होंगे। प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम एक एक टास्क से दूसरे टास्क में जाते हैं, एक इवेंट से दूसरे इवेंट में जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम पहले इवेंट में क्या कर रहे थे। और फिर जब हम वापस से उस इवेंट में आते हैं, तो हमें 2 मिनट लगता है ये समझने के लिए कि हम कर क्या रहे थे। अगर आप एक ही काम में पूरा प्रोसेस कर लें, ठीक है? तो आपको कम टाइम लगेगा, एंड दैट इज़ वेयर मल्टीटास्किंग इज़ अ लाई। आपको ये समझना पड़ेगा कि मल्टीटास्कर होने से आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप सिर्फ एक एवरेज पर्सन बन सकते हैं। नाउ एक कॉलेज में एक्सपेरिमेंट किया गया। कॉलेज में एक्सपेरिमेंट किया गया। एक बच कुछ बच्चों को लिया गया जो बहुत फेमस थे मल्टीटास्किंग करने के लिए, एंड दे वर वेरी फेमस। एक मल्टीटास्किंग की सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है आपको? मल्टीटास्किंग आपको बहुत फेमस बना देता है। फेमस बनाता है, सक्सेसफुल नहीं बनाता है। मल्टीटास्किंग की वजह से एक कॉलेज में एक्सपेरिमेंट किया गया, अगेन हार्वर्ड में एक्सपेरिमेंट किया गया। इसके अंदर सेट ऑफ 2 स्टूडेंट्स को डिवाइड किया गया। कुछ स्टूडेंट्स को मल्टीटास्किंग का काम दिया गया जो ऑलरेडी फेमस थे मल्टीटास्किंग करने के लिए, और कुछ स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट थे उन्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया काम करने के लिए। एंड ऑब्वियसली जैसा आप सोच रहे हैं रिजल्ट इज सेम। मल्टीटास्किंग वाले जो स्टूडेंट थे उन्होंने टास्क परफॉर्म तो किए, लेकिन उन्होंने उतने अच्छे तरीके से नहीं किए जितना सिंगल टास्क वाले बच्चों ने किया। तो जिन बच्चों को सिर्फ सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए बोला गया था, उन्होंने उसी के ऊपर एफर्ट डाला, उन्होंने उसी चीज को पॉलिश किया, उन्होंने उसी चीज को एकदम फिनिश किया, एंड फाइनली उनका जो टैलेंट था, जो उनका स्किल था, वो डेवलप होकर बाहर आया। एंड दैट इज वेयर मल्टीटास्किंग इज राइट। बहुत सारे हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आप लोग लाइफ में करते होंगे, आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, तो जोकर को जगलिंग करते हुए देखा होगा और हम लोग को लगता है कि वाओ जगलिंग हो रहा है। जैसे हमने कंप्यूटर के अंदर देखा कि बहुत सारे टास्क को साथ में परफॉर्म कर रहा है। जगलर क्या करता है, बॉल्स को लेता है और साथ में जगलिंग करता है, राइट? अब जगलिंग का अगर कोई यहाँ पे जगलिंग करना जानता होगा, वो इस चीज को जानता होगा कि जगलिंग एक विजुअल विजुअल एक ट्रीट है, जिसमें हमें ये नहीं पता चल पाता है कि बॉल्स सीक्वेंस में चल रही है किस तरीके से चल रही है। एक्चुअली जगलिंग के अंदर जो जगलर होता है, वो दोनों बॉल्स को हाथ में रखता है और एक बॉल को ही हवा में रखता है। उसे सिर्फ अपना हाथ रोटेट करना होता है। तो ही इज़ जस्ट स्विचिंग द बॉल, बट देखने वाले को लगता है कि वॉव! वो इतनी सारी बॉल्स को एक साथ हवा में उड़ा रहा है, एंड दैट इज़ वेयर जगलिंग इज़ आल्सो इल्यूजन। तो मल्टीटास्क नहीं होता है वो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम लोग तो मल्टीटास्क कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बहुत बेसिक सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आप लोग फ़ोन पे बात करते-करते सड़क पे चल रहे हैं। तो आप इस वक़्त मल्टीटास्क कर रहे हैं? राइट, आप लोग मल्टीटास्क कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग बोलेंगे सर हम तो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। और 2 सिचुएशन मैं आपको देता हूँ। पहली सिचुएशन कि जब आप फ़ोन पे बात करके चल रहे होते हैं, तो क्या आप ट्रैफिक भरे रास्ते में चल रहे होते हैं? और अगर आप ट्रैफिक भरे रास्ते में चल रहे होते हैं, तो क्या आपका ध्यान फ़ोन की बातों पर होता है? ऑब्वियसली नहीं, राइट? क्योंकि जब आप रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है, हाईवे, वो कंटीन्यूअस गाड़ी 80-100 की स्पीड में आ रही है और आप अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, तो आप लोग फ़ोन की बातों पे ध्यान नहीं देंगे, आप आपके चलने पे ध्यान देंगे।
तो जब हम टास्क को इस तरीके से करते हैं तो हमारा ब्रेन भी यही करता है, एक टास्क को बैकग्राउंड में, एक टास्क को फोरग्राउंड में। जब आप गार्डन में चल रहे होते हैं तब आपका ध्यान चलने पे नहीं होता है, फोन की बातों पर होता है। बट यही जब आप हाईवे पे चल रहे होते हैं तो आपका ध्यान चलने पे होता है, बातों में नहीं होता है। एंड दैट इज वेयर इट इज सेड दैट मल्टीटास्किंग इज अ लाई। तो जिन लोगों को भी लगता है कि मल्टीटास्किंग करने से हमें बहुत फायदा होगा या हम लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर लेंगे, आप प्लीज अपने फोकस को थोड़ा-सा नैरो कीजिए, स्मॉल कीजिए, कट डाउन कीजिए। एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ पे, व्हाट इज़ दैट वन थिंग व्हिच विल मेक यू सक्सेसफुल? बिकॉज़ मल्टीटास्किंग इज़ नाइदर एफिशिएंट नॉर इफेक्टिव। मल्टीटास्किंग आपको कहीं नहीं लेके जाने वाली, राइट? नाउ सेकंड हमें जो लाइन सिखाया गया है, वो सिखाया गया है कि एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। हमें हर चीज़ को टाइम देना चाहिए, हमें बैलेंस लाइफ करनी चाहिए, हमें सब चीज़ों को करना चाहिए। दिस इज़ अगेन अ लाई, ठीक है? हमें लगता है कि अर्जेंट चीज़ें जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, तो हमें सारी चीज़ों को अगर मेरा दोस्त इस वक़्त कॉल करके मुझे बोल रहा है कि चलो घूमने चलते हैं, मेरे को कल एग्ज़ाम देना है या पबजी खेलना है या टीवी पे कोई शो आ रहा है, अभी इसी वक़्त चालू हो गया, मैं कैसे उसको मिस करूँ? अर्जेंट का मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जिस दिन आप इस चीज़ को समझ जाएँगे, आप अपने फ़ोकस को नैरो डाउन करना शुरू कर देंगे। अर्जेंट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, राइट? आपको 2 चीज़ों को अलग करना पड़ेगा, अर्जेंट चीज़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ें। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको उनको अटेंड करना है। जो आपके लिए अर्जेंट है, आपको उनको अटेंड नहीं करना है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको पैरेटो प्रिंसिपल समझाता हूँ। नाउ पैरेटो प्रिंसिपल इज़ वेरी फेमस, इट इज़ आल्सो नोन एज़ 80-20 रूल। 80-20 रूल बोलता है कि हमारी लाइफ़ के जो 80% रिज़ल्ट्स होते हैं, जो भी हम सक्सेसफुल बन जाएँ या हम जो भी कुछ कर रहे हैं, ये आपके 20% एफर्ट पे डिपेंड करते हैं। आप अपने एग्ज़ाम्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम्स देते हैं, आपके जितने भी मार्क्स आते हैं, आपको पता है कि आपने उसके लिए कितनी परसेंट पढ़ाई की, आप पूरे पूरे कॉलेज के हिसाब से देख लीजिए आपने कितना परसेंट एफर्ट डाला है। इट इज़ हार्डली अ 20% एफर्ट जो आपको 80% रिज़ल्ट देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है एक्चुअल लाइफ़ में हमारा जो मैक्सिमम एफर्ट है, जो हमारा 80% एफर्ट हो जाता है, वो सिर्फ 20% रिज़ल्ट जनरेट करता है क्योंकि हम सारे मल्टीटास्किंग में चले जाते हैं। तो हमें सिर्फ उस 20% एफर्ट पे फोकस करना है। वो ऑटोमेटिकली आपको 80% रिजल्ट लाके देगा और ये 80-20 प्रिंसिपल आपको हर जगह एप्लीकेबल होता है लाइफ के अंदर। आप आगे जाके मार्केटिंग पढ़ेंगे, आप फाइनेंस पढ़ेंगे, बिज़नेस पढ़ेंगे या कोई भी कोर्स पढ़ेंगे, आप पैरेटो प्रिंसिपल को ज़रूर पढ़ेंगे। बिकॉज़ 20% चीज़ें ही आपको 80% रिजल्ट लाके देती है और आपको उन 20% चीज़ों पे फोकस करना है। पैरेटो प्रिंसिपल को अगर हम थोड़ा-सा और आगे लेके जाएँ, तो आपको पता चलेगा कि आप वो 20% को भी और 20% तक लेके जा सकते हैं एंड दैट इज़ वेयर योर वन थिंग विल कम। बहुत सारे लोग अपने ना टू डू लिस्ट बनाते हैं। क्योंकि हमें हर चीज़ करनी है लाइफ के अंदर, मुझे घूमने भी जाना है, मुझे जिम भी जाना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो हम सक्सेसफुल बनने के लिए हमारी टू डू लिस्ट बनाते हैं, राइट? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टू डू लिस्ट में से हम उन सारी चीज़ों को ऐड कर देते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, जब हम वन थिंग पे फोकस करना है, तो हमें उन टू डू लिस्ट में से कुड डू, शुड डू में से जो शुड डू वाली चीज़ें हैं, उनको निकालना चाहिए। हम अगर सारा काम करने जाएँगे, तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएँगे। पर सक्सेस के लिए मुझे क्या ज़रूरी है, उन चीज़ों को निकालिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो मुझे सोशल मीडिया पे कम एक्टिव रहना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया हमारी लाइफ में इतना भर चुका है कि हम उन चीज़ों को हम उन डिस्ट्रैक्शंस को अलग कर ही नहीं पाते। हमें ये सारी चीज़ें करनी है, नहीं मुझे आज जवाब देना है, मुझे फ़ोटो पोस्ट करना है, मुझे कमेंट करना है, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, राइट? टीवी देखना है, पबजी खेलना है, टिकटॉक देखना है, कमेंट करना है, ब्ला, 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 लिस्ट इज़ एंडलेस, राइट? एंड फाइनली हम कंप्लेन करते हैं कि हमने लाइफ में कुछ नहीं किया, हम एक एवरेज लाइफ में खत्म हो गए। नहीं, आप एवरेज लाइफ में इसलिए खत्म हो गए क्योंकि आपने अपनी सक्सेस लिस्ट को ट्राई नहीं किया, राइट? तो सारी एक्स्ट्रा चीज़ों को साइड में हटाइए, आपकी सक्सेस के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू वांट टू बिकम हेल्दी पर्सन, आपको जिम जाना है, आपको बॉडी बनाना है, तो आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फ़ोकस कीजिए जो जिम से रिलेटेड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मल्टीटास्किंग जिम से रिलेटेड मत कीजिए। आपको जिम से रिलेटेड सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको डाइट फ़ॉलो करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज़ को फ़ॉलो करना पड़ेगा, आपको अच्छे जो जो लोग होंगे फ़िटनेस इंडस्ट्री में उनके स्पीचेज़ को सुनना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि वो कैसे आगे आप बढ़ सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको आप साइड में रख दीजिए। अपनी सक्सेस लिस्ट को तैयार कीजिए एंड दैट इज़ वेयर आपकी बाकी की सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी। हम आते हैं हमारे तीसरे झूठ पे। विल पावर इज़ ऑन विल कॉल। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि आपको जब लगेगा तब आप जाके आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। आपके आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में है, आपको कुछ भी करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों को बहुत लोग सिखाते हैं कि नहीं, मोटिवेशन तो आपके अंदर है, मोटिवेट कैसे नहीं हो सकते। ये सब एक झूठ है। विल पावर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जब आपने बोला कि चलो ठीक है, मेरे को अभी ये चीज़ करनी है तो मैं अभी तुरंत कर लूँगा। नो, विल पावर इज़ ऑन विल कॉल। विल पावर एक बैटरी की तरह होती है। जब हम शुरू करते हैं हमारा डे, तो हमारा विल पावर एकदम फुल चार्ज होता है। एंड जैसे-जैसे हम दिन भर उसको यूज़ करते जाते हैं, हमारा विल पावर खत्म होता जाता है, राइट? तो अगर इमेजिन कीजिए कि अगर आपको
ओके, स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर मैं बाद में लूंगा, एंड 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 में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। पहले हम ये पूरे कंसेप्ट को समझ लेते हैं। सो अगर आपका विल पावर एक बैटरी की तरह है और आपको बहुत सारे टास्क दिन भर में परफॉर्म करने हैं, योगा, जिम, स्टडी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक सीखना है, आपको अपने बिजनेस आइडिया पे काम करना है, अगर आपको इतने सारे टास्क करने हैं, तो प्रॉब्लम ये होगा कि आप सारे टास्क को करते करते एंड के दिन में, रात के टाइम तक आते आते आपकी बैटरी पूरी ड्रेन हो जाएगी। और विल पावर आपको, इवन जब आप डिस्ट्रैक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका मोबाइल आपके हाथ में और अगर आपको मैसेजेस आ रहे हैं और अगर आपको उनको रिप्लाई करना है, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको उनको मना नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप वहां पे जाके यहाँ पे वापस लेक्चर में आ रहे हैं, जबरदस्ती आ रहे हैं या विलिंगली आ रहे हैं, तो आपका विल पावर थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है। विल पावर ये विल कॉल पर नहीं होता है, ये एक बैटरी की तरह होता है। आप उसको चार्ज करके उठते हैं सुबह सुबह, डेली सुबह आप उसको चार्ज करके उठते हैं, बट धीरे 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 जब आप दिन भर में बहुत सारे टास्क करते जाते हैं, कुछ टास्क को आप हाँ बोलते हैं, कुछ टास्क को आप ना बोलते हैं, कुछ लोगों को आप हाँ बोलते हैं, कुछ लोगों को आप ना बोलते हैं, तो धीरे-धीरे आपका विल पावर भी खत्म होता जाता है। तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो मैं रात को टाइम पे बहुत ऐसी कुछ यूनिक चीज़ करूँगा, अपने बिज़नेस आइडिया पे वर्क करूँगा, लेकिन दिन भर की थकान उनको रात तक जगने नहीं देती। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं, नहीं सर हम रात में अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप रात में बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आप सुबह उसे ट्राई करेंगे, तो डेफिनिटली आप उससे ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, क्योंकि दिन भर में आपकी बैटरी पूरी ड्रेन हो चुकी होती है। इवन लाइफ में जब अगर आपको सक्सेसफुल बनना होगा, तो आपको यही होगा। आप खुद को चार्ज करेंगे। शायद हो सकता है कि आपको लेक्चर के बाद लगे कि वाओ! क्या लेक्चर हो गया, मज़ा आ गया। अब मुझे एक चीज़ पे फ़ोकस करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। अभी आपकी विल पावर की बैटरी शायद चार्ज है, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे आपकी बैटरी ड्रेन होती जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएँगे, बहुत सारी चीज़ें आएँगी। आपको अपनी बैटरी को चार्ज रखते रहना पड़ेगा। वो हम कैसे रख सकते हैं? और उसके पहले हम ये समझते हैं कि विल पावर मैक्सिमम कब होता है। विल पावर आपका सुबह के टाइम पे मैक्सिमम होता है। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, तो आपका जो भी वन थिंग है, जो भी आपका वन थिंग है, उसको आप सुबह-सुबह परफॉर्म कीजिए। अगर आपको राइटर बनना है, आप सुबह राइटिंग कीजिए। अगर आपको स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, आप सुबह प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि उस टाइम पे आपका विल पावर मैक्सिमम होता है। काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में नहीं आते हैं, राइट? तो उसकी वजह से होता है। Now, now how these things are fed. Sorry, just a minute. Perfect. सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो हम वापस से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, हम कहाँ पे थे? एवरीथिंग मैटर्स इक्वली, नहीं बिल्कुल नहीं, राइट? जैसे मैंने बोला परेटो प्रिंसिपल के बाद में हमने टू डू लिस्ट का बात किया, फिर हमने बात किया विल पावर के बारे में। विल पावर एक बैटरी की तरह है, जो सुबह से शाम तक खत्म हो जाती है। अगर आपको बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने हैं, आप बहुत सारी चीजों को प्लान कर रहे हैं, तो रात होते होते आपकी बैटरी खत्म हो जाएगी। तो मॉर्निंग का जो टाइम होता है, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, एंड दैट इज द टाइम जहां पर आपको अपने वन थिंग को खत्म करना होगा। आप जितना जल्दी मॉर्निंग में से परफॉर्म करेंगे, आप उतना बेटर उसको परफॉर्म कर पाएंगे। जितना आप उसे लेट करेंगे, उतना आपके लिए प्रॉब्लम होगा, राइट? तो इमेजिन योर विल पावर इज अ मोबाइल फोन बैटरी। आपको, जैसे मैंने बोला कि शायद आज आपको लेक्चर के बाद लगे कि यस, क्योंकि हमारे पास इतना सारा टाइम है, हम लॉकडाउन में हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें करने के लिए, शायद मुझे पता नहीं कॉलेज कब खुलेंगे, आप लोगों को भी बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा होगा। और प्लस अभी जैसा हमने बोला कि अब टिकटॉक भी बैन हो गया, तो आप लोगों के पास में बहुत सारा टाइम है, तो आप लोग करेंगे क्या? तो आप लोग में से काफी सारे लोग सोचेंगे कि चलो हम अपने सक्सेस के फॉर्मूला पे वर्क करते हैं। तो आपका जो विल पावर है, ये एक बैटरी की तरह है, राइट? अब आप उसको चार्ज करेंगे। आप चार्ज करने के बाद में धीरे-धीरे वो ड्रेन हो जाएगा। अब कल आप क्या करेंगे? जब कल आप सुबह उठेंगे, आपको लगेगा कि यार मुझे ये चीज़ करना चाहिए। ये चीज़ जब आप परसों करेंगे, तो आपको कुछ और लगेगा। उसके बाद करेंगे कुछ और लगेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप जिम की शुरुआत करते हैं। जब आप जिम की शुरुआत करते हैं, बहुत सारे बच्चे नए साल की शुरुआत में या एग्ज़ाम्स के बाद में वेकेशन पीरियड के अंदर जिम की शुरुआत करते हैं, फिटनेस की शुरुआत करते हैं। तो जब वो शुरू करते हैं, पहले दिन तो बहुत जोश में होते हैं, क्योंकि विल पावर एकदम फुल होता है। धीरे-धीरे 2-3 दिन के बाद आपने देखा होगा कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बच्चों का इंटरेस्ट कम होता जाता है। हार्डली कुछ बच्चे होते हैं जो कंटिन्यू कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विल पावर चार्ज नहीं है। तो आप विल पावर को चार्ज कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, आप बहुत सारी बुक्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बुक्स हैं, काफ़ी सारी बुक्स हैं। इसके बारे में मैं अगले सेशन में बात करूँगा। आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। डिजिटल टाइम है, घर पे बैठे हम, लॉकडाउन का टाइम है। यूट्यूब एक बहुत एक्सेसिबल चीज़ है। काफ़ी सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी बायोग्राफीज़, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स अवेलेबल हैं, जिनको आप देख सकते हैं। इवन आप पॉडकास्ट वगैरह सुन सकते हैं। आजकल ऑडियो बुक्स का ज़माना है, ऑडिबल वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। स्पॉटिफ़ाई पे काफ़ी सारे पॉडकास्ट होते हैं, आप उन लोग को सुन सकते हैं। टेड टॉक्स आप सुन सकते हैं। दिस विल मेक योर विल पावर फुल। आपकी बैटरी हमेशा चार्ज रहेगी। तो हर थोड़े दिन के अंदर भी सक्सेसफुल लोगों को सुनिए। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके बारे में पढ़िए। आपका विल पावर हमेशा चार्ज रहेगा। तो विल पावर आपके विल पर नहीं आता है, विल पावर आपको कंटिन्यूअसली चार्ज करते रहना पड़ता है। दैट इज़ अ लाइ जो हमें सिखाया गया है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बिग इज़ बैड।
हमें बोला जाता है कि जो बहुत लोग बड़ा कुछ करते हैं लाइफ के अंदर, बहुत कुछ तोड़ू कर लेते हैं लाइफ के अंदर, उसके लिए उनको बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि टू अचीव समथिंग बिग यू नीड अ लॉट ऑफ बिग एफर्ट। इट इज़ अ लाई, ये झूठ है। आपको कुछ बड़ा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ जेफ बेज़ोस की, जिन्होंने अमेज़न की शुरुआत करी, उन्होंने कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं किया। उन्होंने अपने बिज़नेस पैटर्न को, एक डिलीवरी सिस्टम को, लॉजिस्टिक सिस्टम को कंटिन्यू किया और वो उसको बढ़ाते गए। बस एक डोमिनो इफेक्ट 2 इंच का, जिनको उन्होंने गिरा और वो कंटिन्यू हुआ। उन्होंने कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं किया। अब हमें लगता है कि सक्सेसफुल बनने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, हम नहीं बन सकते हैं, जो बहुत तुड़ू है, बहुत अलग चीज़ है। इस वजह से हम लोग लाइफ में बड़े नहीं बन पाते, क्योंकि हम एक्शन ही नहीं लेते। जैसे अगर मैं काफ़ी सारे बच्चों को भी पूछूँ कि आपको लगता है कि आपको 90% के ऊपर आएगा, तो काफ़ी सारे बच्चे मुझे बोलेंगे, नहीं, नहीं सर, हमें 90% नहीं आ सकता। हम इतना कर ही नहीं सकते, हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आपकी सोच वहाँ पर खत्म हो गई। जबकि 90% लाने वाले बच्चे ने भी कुछ अलग नहीं किया है। वो भी आप में से कोई होता है, आपकी क्लास में से कोई एक होता है। लेकिन वो एक नॉर्मल चीज़ को कंटिन्यू करता है और आप उस नॉर्मल चीज़ को कंटिन्यू नहीं करते। नाउ जिस तरीके से आप सोचेंगे, वैसा ही आपका एक्शन होगा, वैसे ही आपका आउटकम आएगा। देख लीजिए यहाँ पर एक चार्ट हमने दिया है, थिंक बिग, एक्ट बिग एंड सक्सीड बिग के बारे में। जब हमारी सोच छोटी हो जाती है कि हम बड़ा कुछ नहीं कर सकते, तो हम छोटे-छोटे एक्शन लेते हैं और हमें लगता है कि हम सही हैं। और अगर जब हम सोच लेते हैं कि हमें कुछ बड़ा करना है, तो हमारे एक्शन भी वैसे होते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है स्विमिंग का। नाउ इमेजिन आपको स्विमिंग, जिनको स्विमिंग नहीं आती है, उनको लगता है कि यार स्विमिंग करना कितना बड़ा टास्क है, मैं पानी के अंदर कूद जाऊँगा, मैं बचूँगा, नहीं बचूँगा, और क्योंकि मुझे पानी से डर लगता है या मुझे स्विमिंग नहीं आती है, इसके लिए मैं स्विमिंग पूल से दूर खड़ा रहूँगा। तो मैंने तो अपनी सोच को छोटा कर लिया। मुझे लगता है कि ये इससे अच्छा है कि मैं साइड में रहूँ या छोटे स्विमिंग पूल में जाऊँ जहाँ पे मैं डूबूँगा नहीं, मैं वहीं पे नहा लूँगा और वहीं पे मैं खुश होके आ जाऊँगा, राइट? आपने अपने एक्शन को वहीं पे रुका दिया क्योंकि आप स्मॉल आउटकम चाहते थे। आपको लगा कि ये बहुत बड़ा टास्क है। एक्चुअली बड़ा टास्क नहीं, जो लोग स्विमिंग करते हैं वो जानते हैं, स्विमिंग कोई बड़ी बात नहीं है। एक बहुत बेसिक सी चीज़ है जिसको हम रेगुलर प्रैक्टिस करें तो हो सकता है। ड्राइविंग की बात कर लीजिए, ड्राइविंग कोई बड़ी चीज़ नहीं, बहुत सारे लोग बच्चे यहाँ पे ड्राइव करते होंगे। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ड्राइविंग बहुत डिफिकल्ट टास्क है। नहीं, जब आप अपने सोच को थोड़ा-सा बढ़ा लेते हैं, जब आपको लगता है कि ये कोई बड़े डिफिकल्ट टास्क नहीं है, तो आपके एक्शन भी उसी तरीके से होते हैं। तो बड़ा कुछ करने के लिए आपको कुछ एकदम बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटी-छोटी चीज़ों को धीरे-धीरे करते जाइए, डेफिनिटली आपको सक्सेस मिलेगा। अ डिसिप्लिन्ड लाइफ एक बहुत बड़ा झूठ है। नाउ हमें हमेशा सुनने में आता है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं। उनका टाइमिंग को लेकर, उनकी पंक्चुअलिटी को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, लाइफ में वो हर चीज़ को प्रॉपर्ली करते हैं। वो जिस फील्ड में जाते हैं उसमें एकदम मास्टर होते हैं। आपको काफ़ी सारी चीज़ें बोली जाती है। लेकिन ये भी एक झूठ है, ठीक है? सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन होने की ज़रूरत नहीं है। हर एरिया में डिसिप्लिन्ड होने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा-सा एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम लोग। हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक स्विमर के बारे में बात करी थी, माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स जब किंडरगार्टन में पढ़ते थे, तो उनके किंडरगार्टन के टीचर ने बोला कि माइकल फेल्प्स कभी भी किसी भी चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पाएगा बिकॉज़ उसको एडीएचडी डिज़ीज़ है। तो उसको कंसंट्रेशन करने में या फ़ोकस करने में प्रॉब्लम होगी। तो घरवालों को बहुत टेंशन आया कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक बच्चों की तरह होगा, जो चीज़ों पे फ़ोकस नहीं कर पाएगा, लॉस्ट रहेगा हर चीज़ में, ठीक है? 10 साल की एज में जब वो अपने कोच से मिले, तो उन्होंने उनको सिर्फ़ एक चीज़ में डिसिप्लिन होने के लिए कहा। उनको बोला कि आप सिर्फ़ स्विमिंग कीजिए, आप दिन भर कुछ मत कीजिए, आपको कहीं फ़ोकस करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको हर चीज़ में मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ स्विमिंग के ऊपर फ़ोकस कीजिए और स्विमिंग का डिसिप्लिन रखिए। माइकल फेल्प्स ने डेली 6 घंटे प्रैक्टिस की। बाकी के टाइम पे इवन बड़े होने के बाद भी माइकल फेल्प्स जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो मतलब हाईएस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है? मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स है माइकल फेल्प्स के पास में। एक बार माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड है कि माइकल फेल्प्स के पास जितने गोल्ड मेडल हैं, अगर उसको टैली शीट में रखा जाए, तो जो ओलंपिक में जितनी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, उसमें वो 12th रैंक पे अकेले ही आ जाएँगे। तो इतनी सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन माइकल फेल्प्स अकेले इतने गोल्ड जीत जाते हैं कि वो खुद 12th रैंक पर आ सकते हैं अगर कंट्री के समक्ष वो कंट्री के एक सिनोनिम अगर वो वर्क करे तो उनको कंसीडर किया जाए तो। तो माइकल फेल्प्स बड़े होने के बाद भी उनको फोकस के काफ़ी सारे इश्यू रहे। अगर आप माइकल फेल्प्स के इंटरव्यू देखेंगे या वीडियो देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो बंदा अभी भी बोलते-बोलते अपना फोकस लॉस कर लेता है या वो चलते-फिरते अपना फोकस लॉस कर लेता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्विमिंग, स्विमिंग में उनके फोकस को कोई नहीं हरा सकता है। एंड दैट इज़ द रीज़न 6-6 घंटा, 8-8 घंटा माइकल फेल्प्स ने प्रैक्टिस किया, तो ही वन मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल, राइट? तो आपको सक्सेसफुल बनने के लिए आपको सेलेक्टेड डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, अगर आपको अच्छी बॉडी बनानी है, आपको अगर कुछ हेल्थ बनानी है, तो आपको आपको सिर्फ़ अपने खाने पे ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप खाना ये मत खाइए, आप ये सारी चीज़ कीजिए, वो कीजिए। नहीं, अगर आप किसी दिन एक्स्ट्रा खा लेते हो, आप अगले दिन एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपने वर्कआउट पे डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। आपको हर चीज़ में डिसिप्लिन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खाने पे कंट्रोल कर लूँ, मैं मीठा नहीं खाऊँ, मैं तेल वाला नहीं खाऊँ, मैं ये नहीं करूँ। नहीं, 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 नहीं। अगर आपको फिट होना है,
तो आपको अपने वर्कआउट पे डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। अगर आपने एक दिन कुछ ज़्यादा खा लिया है, तो आपको अगले दिन उस पे वर्कआउट करना पड़ेगा। दैट इज़ वेयर द डिसिप्लिन कम्स। तो आपको अगर आपको लग रहा है कि मुझे अगर सक्सेसफुल बनना है और अगर आज मेरी पढ़ाई मिस हो गई है, अगर मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करना है और आज आपकी पढ़ाई मिस हो गई है, तो आप बाकी चीज़ों अगले दिन उसको कवर कर लीजिए। आप अपनी पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। बस दैट विल मेक यू सक्सेसफुल। आप बाकी सारी चीज़ें कीजिए। आपको ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर आपको घर वाले जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर हम मोबाइल से दूर रहेंगे तो हम बहुत अच्छे मार्क्स लाएँगे। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप मोबाइल के साथ भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हाँ, बट जब आप पढ़ने बैठें, तो मेक श्योर कि आप सिर्फ पढ़ने बैठें। फिर आप व्हाट्सएप पे या सोशल इंस्टाग्राम पे या पबजी खेलने मत बैठिए। आपका डिसिप्लिन उसमें होना चाहिए। बाकी आप दिन के जितने भी घंटे आप जो करना चाहें आप वो कर सकते हैं, राइट? इसके लिए आपको हैबिट डालना पड़ेगा। सक्सेस के लिए आपको हैबिट डालना पड़ेगा। और साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हमें कुछ डिसिप्लिन लाना है लाइफ में, देखो हमें एक ही चीज़ में डिसिप्लिन लाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। राइटर ने क्या कहा है कि हमें हर चीज़ में डिसिप्लिन होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज़ पे डिसिप्लिन होना है। हमें एक हैबिट डालनी है। एक हैबिट से हम शुरू करेंगे, अगर हमने उस हैबिट को बना लिया, तो आगे जाके धीरे-धीरे वो हैबिट और अच्छी हैबिट में बन जाएगी और इसके लिए आपको 66 डेज़ लगेंगे। वैसे अगर आप रिसर्च को देखें, तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब रिसर्च किया गया, तो उन्होंने बोला कि 18 डेज़ से लेके 254 डेज़ लगते हैं हैबिट फॉर्मेशन में। ये डिपेंड करता है कि हैबिट कैसी है। मतलब बहुत छोटी सी अगर कोई हैबिट है, तो आप 18 दिन के अंदर वो हैबिट आपको फॉर्म हो जाएगी। अगर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैबिट है, तो इसके लिए 254 डेज़ लगते हैं। बट एवरेज अगर हम वर्कआउट करें, तो आपको हैबिट आने के लिए 66 डेज़ लगते हैं। तो अगर आप 66 डेज़ कोई भी एक चीज़ करें, तो ऑटोमैटिकली आप उसकी हैबिट शुरू हो जाएगी और उसी चीज़ की हैबिट आपको डालनी है। आपको सक्सेसफुल अगर बनना है, तो आपकी वो वन थिंग क्या है? आप किस चीज़ में मास्टर होना चाहते हैं, उसकी 66 डेज़ प्रैक्टिस कीजिए। ऑटोमैटिकली वो हैबिट बन जाएगा। ऑटोमैटिकली वो आपको सक्सेसफुल बनाने में काम आएगा। एंड दैट इज़ वेयर योर हैबिट कम्स इंटू द पिक्चर। नाउ सॉरी, नाउ दिस इज़ द वन थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट? तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आपको इन सारी चीज़ों पे सॉरी, इन सारी चीज़ों पे वर्कआउट करना पड़ेगा। व्हाट आर योर वन थिंग्स? दीज़ आर योर बुक्स। अच्छा, बुक्स की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो दैट डज़ नॉट मीन कि हमको सिर्फ बुक्स पढ़ना है। देखो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ट्रेडिशनल मेथड की बुक्स को फॉलो नहीं करते। इवन मैं, ठीक है? जैसे मैडम ने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी बुक्स एक्चुअली पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है? मैं काफ़ी सारी बुक्स को सुनता भी हूँ, ठीक है? मैं यूट्यूब पे उनके वीडियोज़ भी देखता हूँ। इवन मैं किंडल में डिजिटल बुक्स पढ़ता हूँ, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि आप बुक्स मतलब आप एक ट्रेडिशनल जो हार्ड कवर बुक होती है, आप उसी को फॉलो करें। एक बहुत अच्छी हैबिट है। स्टूडेंट्स के लिए मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि जिस दिन आपको रीडिंग की हैबिट लग गई, तो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे और आपको खुद पता चलता जाएगा कि वो वन थिंग क्या है, आपकी लाइफ में वो वन थिंग क्या है। देखिए, आप काफ़ी सारे लोगों को मिलेंगे कि व्हाट इज़ माय वन थिंग, व्हाट इज़ माय वन थिंग? नहीं, आपकी वन थिंग आपको ही पता चलेगी और वो कैसे पता चलेगी? जब आप रीडिंग की हैबिट डालेंगे। आप क्या-क्या पढ़ सकते हैं? आप पढ़ सकते हैं आप फेमस लोगों की अ, बायोग्राफीज़ को पढ़ सकते हैं, राइट? आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बुक पढ़ सकते हैं। आप टेड टॉक्स को सुन सकते हैं। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने मिलती हैं। टेड टॉक एक बहुत फेमस चीज़ है, काफ़ी सारे फेमस लोग आते हैं, बहुत शॉर्ट में होता है क्योंकि आजकल हमारा अटेंशन स्पैन थोड़ा-सा कम हो गया है, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं टेड टॉक भी सुन सकते हैं। 8 से 10 मिनट के टेड टॉक वीडियोज़ होते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है, आपको इंस्पायर होने मिलता है। आपको इन चीज़ों की हैबिट डालनी होगी। अगर 66 डेज़ अगर आप इन चीज़ों की हैबिट डालें, ट्रस्ट मी आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं। राइट? सो बायोग्राफी पढ़िए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बुक्स, टेड टॉक सुनिए, राइट? एंड मोटिवेशनल स्पीचेस सुनिए एंड दैट इज़ द वन थिंग, राइट? तो मैं यहाँ पर हमारा सेशन यहीं पे रुकता हूँ बिकॉज़ हमारा अलॉटेड टाइम जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अगर ये वन हैबिट, रीडिंग हैबिट अगर आपको लग जाती है, ट्रस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी और आपको पता चलेगा कि वन थिंग क्या है। सो नाउ ओवर टू फरीन मैम। मैम कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन हम शुरू कर लेते हैं, बिकॉज़ हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का समय बचा हुआ है। एंड स्टूडेंट्स दोज़ हू आर इंटरेस्टेड, बुक मैंने सिर्फ आपको आधी बताई है। आप अगर पूरी बुक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बुक ले सकते हैं। बुक में 2 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट था जो हमने पढ़ा कि लाइफ हमें क्या सिखाए गए और सच क्या है, अगर हमें सक्सेसफुल बनना है लाइफ के अंदर तो सच क्या है, ठीक है? तो आप उन चीजों को, बुक को कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। ओके, ओवर टू फरीन मैम। इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट, यू कैन आस्क मी। आप चैट बॉक्स में डाउट रखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आपके Yes, डाउट्स को Sunil. क्लियर कर लेता हूँ।
Students, आपको जो भी डाउट्स है प्लीज लेट अस नो इन द चैट बॉक्स सो दैट सर कैन क्लियर इट. I think few participants have raised their hands. Ritesh Okay. Kadam, you have any doubt? Please unmute yourself and ask your doubt. You can ask your doubts in chat box also. Okay, I got one doubt on YouTube from Sheetal Vatak. Ma'am, she asked कि she's a housewife and teacher also, and उन्हें दोनों ही task बहुत confuse करते हैं. So she's not able to give the complete focus to both of the things. Now, how she can manage both the tasks? Please suggest. Okay, ma'am. मैम जैसा आप बोल रहे हैं कि आप हाउस वाइफ भी है और आप टीचर भी हैं और आपको दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली फोकस करना है. हम ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा जो सक्सेसफुल अगर हम होने की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो आपका सक्सेस अगर आप घर पे मैक्सिमम टाइम देंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे. राइट मतलब आपकी घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपसे अनलिमिटेड टास्क डिमांड नहीं कर रही. आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे लिमिटेड चीजें ही डिमांड कर रही है. तो आपको लिमिटेड चीजों को ही पूरा करना है. आपको कंप्लीटली फोकस घर पे रखने की जगह आपको पता है कि आपको कितना सेट ऑफ टाइम घर पे देना है, आपको घर पे क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी है. बट यही चीज मैं अगर आपके प्रोफेशन के लिए बोलूँ तो आपके प्रोफेशन में बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे बहुत सारे टास्क डिमांड करती हैं और आपको सक्सेसफुल वहां पर होना है. राइट तो आपको उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. आप दोनों चीजों को फोकस कैसे करें? आपको अपने टास्क को डिवाइड करना पड़ेगा. मैं आपको मल्टीटास्किंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी जो वन थिंग है, जो आपका प्रोफेशन है, आप उस पर फोकस कीजिए. जैसे ही आपको हैबिट आ जाएगी ऑटोमेटिकली आपके घर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती जाएंगी. तो आप घर के जो टास्क हैं उनको एक लिमिटेड रेंज पे रखिए. आपको पता है कि आपको किस लेवल तक किस लिमिट तक घर के टास्क को परफॉर्म करना है. मेरे आपके प्रोफेशन के जो टास्क हैं जो अनलिमिटेड हैं आपको उन पे फोकस करना पड़ेगा. तो एक लिमिट सेट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा. जैसे हमने टू डू लिस्ट की बात करी कि आपके टू डू लिस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें, आप अगर टू डू लिस्ट बना सकते हैं, आपके परेटो प्रिंसिपल पे आप वर्क कर सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, और आपको उसमें शुड डू भी पता चलता रहेगा ऐसी कौन सी अननेसेसरी चीजें हैं जो आप दोनों चीजों को बैलेंस करने के चक्कर में एक्स्ट्रा कर रहे हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी ही पड़ेगी या आपको करनी ही चाहिए. तो ऑटोमेटिकली आपको उन चीजों का मिल जाएगा. आई होप शीतल मैम आपका आंसर आपको मिल गया होगा. यस एंड देयर आर सो मेनी. Second question is from Piyush Shirsekar. He's asking, can you suggest me some good books? Oh, there are many multiple books. आप है ना एक बुक से शुरू कीजिए. देव आप यू कैन विन से शुरू कर सकते हैं. मैं बच्चों को हमेशा सजेस्ट करता हूँ जिन बच्चों को भी रीडिंग का हैबिट नहीं है, और अगर आपको रीडिंग का हैबिट बिल्कुल भी नहीं है तो आप प्लीज यूट्यूब पे जाइए. अगर जो भी बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं यूट्यूब पे जाइए, ऑडियो बुक समरी. आपने देखा मैंने डूडलिंग का वीडियो बनाया था, ठीक है, डूडल वीडियो जैसे होते थे, बहुत सारे डूडल वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको बुक का समरी मिल जाएगा. आपको जो बुक इंटरेस्टिंग लग रही है आप उसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं. तो अगर आपको हैबिट नहीं है बुक पढ़ने की तो आपको सीधा बुक उठा के चैप्टर को गो थ्रू करने का जरूरत नहीं है. आप जाइए, आपके पास आप डिजिटल एरा में आपके पास में बहुत सारी चीजें. नाउ Amazon स्टार्टेड ऑडिबल. आप ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं. यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऑडियो रिकॉर्डेड बुक्स होती हैं, आप उनको सुन सकते हैं. आपको पता चल जाएगा, दैट विल जनरेट योर इंटरेस्ट. तो आप बहुत सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट होती जाएगी. राइट. यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन. एनीवन एल्स? Okay, there is one question on YouTube. He's asking how to make reading habit and avoid more use of mobile phone. Can suggest solution for this? सिंपल सोल्यूशन है, आप मोबाइल पे पढ़ना शुरू कर दीजिए. इंटरेस्ट में आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है तो आपको मोबाइल को साइड में रखना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, नॉर्मल बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है, आप मोबाइल का रिचार्ज मत कराइए. इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं. प्रॉब्लम यही कि हम बहुत ओवर थिंक करते हैं. जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि कि सक्सेसफुल होना बहुत डिफिकल्ट है, मोबाइल की हैबिट छोड़ना बहुत डिफिकल्ट है. कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सा टास्क है. जैसे आपने मोबाइल को साइड में रख दिया, आप बुक पढ़ सकते हैं. सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. प्रॉब्लम यही है कि हमें लगता है कि ये टास्क हमसे होगा ही नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इट इज अ बिग टास्क, इट इज डिमांडिंग अ बिग एक्शन, मोबाइल के बिना कैसे रह लूंगा. कोई बड़ी बात नहीं है. आप 4 दिन बिना नेटवर्क की जगह पे जाएंगे, जैसे हर साल बारिश में होता है. देखिए अभी थोड़े दिन में बारिश चालू हो जाएगी तो आपको ही पता है कि नेटवर्क आना बंद हो जाएगा, लाइट नहीं होती, मोबाइल चार्ज नहीं होते. हम रह लेते हैं बिना मोबाइल के, कोई बड़ी बात नहीं है. आपको धीरे धीरे हैबिट डालनी पड़ेगी. स्टार्ट विथ योर 2 इंच का डोमिनो. सबसे पहले आप 10 मिनट रख के देखिए. 10 मिनट आप बिना मोबाइल के रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो अगले दिन आप 15 मिनट पढ़ेंगे, अगले दिन आप और ज्यादा पढ़ेंगे. आप धीरे धीरे बढ़ेंगे. आप डायरेक्टली ये मत सोचिए कि मैं सीधा मोबाइल को कंप्लीटली बैन कर दूं. नहीं, आपको अपने 2 इंच के डोमिनो से शुरू करना है. धीरे धीरे आप आते जाएंगे. यहाँ पर एक क्वेश्चन है यहाँ पर
कि हाउ कैन वी डेवलप रीडिंग हैबिट इन आवर किड्स, एक बहुत अच्छी सी चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। बहुत अच्छी सी चीज है। मेरी छोटी सी डॉटर है 4 साल की, और हम उसमें मैं उसमें रीडिंग की हैबिट, मतलब मैं और मेरी वाइफ उसमें रीडिंग की हैबिट कैसे डेवलप कर रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं करते, हम उसके सामने बुक पढ़ते हैं। जब रात का टाइम होता है तो मेरी वाइफ एक अलग बुक पढ़ रही है, मैं अलग बुक पढ़ रहा हूँ। ऑटोमेटिकली हमारा बच्चा हमें देखता है और वो खुद उस चीज को कॉपी करना शुरू कर लेता है। अगर आप दिन भर मोबाइल लेके बैठे रहेंगे तो बच्चा भी आपका मोबाइल लेकर ही बैठना सीखेगा। अगर आप दिन भर बुक्स पढ़ते हुए दिखेंगे बच्चे को, बच्चा भी वही करेगा। बच्चे ज्यादा सोचते नहीं, वो अपने माँ बाप को कॉपी करते हैं। तो अगर हम एक अच्छी सी हैबिट उनको सिखाना चाहते हैं तो हम वो खुद करने लगेंगे, ऑटोमेटिकली बच्चा भी सीख जाएगा। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। अगेन 2 इंच का डोमिनो, बहुत छोटी सी चीज है। आप भले ही मत पढ़िए, आप बुक लेके बैठिए, बच्चे को भी लगेगा अगर सब घर वाले बुक पढ़ रहे हैं, चलो हम भी बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वो आई एम अफ्रेड कि मैं सबके आंसर कर पाऊंगा क्योंकि टाइम हमारा खत्म होने आ रहा है। व्हाट इफ मैम यू अलाउ, कैन आई शेयर माय नंबर सो दैट आई मे लाइक अगर किसी को डाउट हो तो वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो मैं चैट बॉक्स पे मेरा नंबर शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। जो भी लोग मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा क्योंकि मैं तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और उसी के साथ में अपना ईमेल आईडी भी शेयर कर रहा हूँ। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, मैं यूट्यूब पे भी शेयर कर दूंगा। एनीबडी इज इंटरेस्टेड कि और या आपके डाउट्स को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होके मुझे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में अपना नंबर और ईमेल आईडी शेयर कर रहा हूँ। प्लीज नो स्पैम, ठीक है? थोड़ा सा टाइम दीजिएगा कि मैं आंसर कर सकूं। तब तक हम 1-2 आंसर और ले लेते हैं। यस मैम, एनी डाउट्स हाउ टू पुट मोर कंसंट्रेशन और वर्क? अगेन मैं फिर आप लोगों को रिपीट करता हूँ। आप लोग बहुत 57th डोमिनो के बारे में सोच रहे हैं। आप लोग 57th डोमिनो के बारे में क्यों सोच रहे हैं? आपको सिर्फ अपने राइट नाउ गोल से शुरू करना है। आपको अगर आप 2 मिनट के कंसंट्रेशन से भी शुरू करते हैं, ट्रस्ट मी, आप 66 डेज में आप सिर्फ अपने काम पे कंसंट्रेशन करेंगे। तो आपको धीरे धीरे शुरुआत करनी है, 1 स्टेप एट अ टाइम। आपको कोई बड़ी चीज नहीं करनी। सक्सेस कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक बहुत छोटा सा स्टेप है। आप एक स्टेप को कंटिन्यू तो कीजिए, आप शुरू तो कीजिए। हम शुरू करने के पहले ही अगर डर जाएंगे तो हम शुरू कैसे करेंगे? आपको सिर्फ 5 मिनट कॉन्सेंट्रेशन से शुरू करना है। आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करेंगे। बस आपको उस हैबिट को कंटिन्यू करना है। जिस दिन आपका विल पावर डाउन हो गया, ऑटोमेटिकली आप 5 मिनट भी नहीं करेंगे। तो अपनी विल पावर की बैटरी को आप चार्ज रखिए हमेशा। सक्सेसफुल लोगों से मिलिए, उनके वीडियोस देखिए, आपको लगेगा कि हाँ यार ये लोग कर रहे हैं। अगर आपको जेलेसी होती है किसी की सक्सेस से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जलिए, लेकिन उनको फॉलो कीजिए। आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है, सिर्फ जलने से काम नहीं चलेगा। आप बड़ा बड़ा मत सोचिए, आप एक एक छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्टेप से शुरू कीजिए। यस, और भी हम बहुत सारे यहाँ पे देख पा रहे हैं फीडबैक सेशन। यस यस यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ पे रहे हैं, one doubt, actually I'm 20 years old, feel like I can't do anything, always confused with what to do and what not to do, every time think of what will be। सिंपल सी टास्क है। आपको जो चीज पसंद है उससे शुरुआत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज हैं लाइफ के अंदर और आपको बहुत सारी चीजें करनी है तो अपनी एक चीज के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। वो एक चीज पे कैसे होगा? आप सबसे पहले बुक ही उठा के देखिए। इस बुक के अंदर बहुत अच्छे से दिया है कि हाउ कैन यू डेवलप योर वन थिंग। मैंने आपको सिर्फ अभी झूठ के बारे में बताया। इस बुक में आगे दिया हुआ है सक्सेस के फॉर्मूलाज भी दिए हुए हैं। मैंने आपको सिर्फ 40% बुक का समरी दिया है। आप इस बुक को पूरा पढ़ेंगे तो आपको धीरे 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 इसमें काफी सारी एक्टिविटीज भी दी हुई हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे अपनी वन थिंग पर आ सकते हैं। तो आप उस बुक को अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत अच्छा डिटेल में दिया हुआ है अगर लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो। एनीवन एल्स? यस मैम। Any doubts? You can unmute yourself and ask your doubts. द नेम ऑफ द बुक रितिका इज द वन थिंग। जो आप टाइटल अभी आप लोग देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, द वन थिंग, दैट इज द बुक। थैंक यू सो मच। आई गेस वी आर डन विद दिस। डाउट नहीं है लोगों के, जो भी डाउट होंगे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू वंस अगेन वर्तक कॉलेज, भावसर वर्तक कॉलेज, अन्ना साहब भावसर वर्तक कॉलेज, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मुझे इस लायक समझा कि मैं बच्चों से इंटरैक्ट कर सकूं। और अगर बच्चों आपको लग रहा है कि अगर मैंने थोड़ी सी भी बात आपके सेंस की है तो अपने वन थिंग पे काम करना शुरू कर दो। लॉकडाउन से अच्छा टाइम तुम्हें नहीं मिल सकता है अपनी हैबिट को डेवलप करने के लिए। इससे अच्छा टाइम तुम्हें नहीं मिल सकता है। राइट, थैंक यू सो मच। Over to you, Parinma. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Sir, very beautifully you have described the main agenda of this book.
and anyone who is struggling with his life or her life should read this book. This book will definitely try to keep them focused and get extraordinary results of their efforts. Very well explained that we should do fewer things to get more effect, more results, instead of doing a lot more of things and getting some side effects. Success is eventually built sequentially. Big thoughts can only come to us. The big thoughts can only be big thoughts can go nowhere without the bold action. Sir, it was very beautifully explained. Thank you so much, sir, for giving your valuable time for us and generating a sense of focus. Thank you so much, sir. I thank our principal madam, our supervisor madam, for giving us such an opportunity, so that and we had a very nice session with you. Thank you so much. Anything add to Internet Sheetal ma'am? connection. Hello. Yes, go ahead. Jasmita, Yes, ma'am. You want to add something? I would just like to thank Rajavat sir, because I know whenever he comes with such wonderful books which even we all refer to. Sir, please be in touch with our kids and with our teachers, especially with our Sevina, who has been relentlessly working over improving the reading skills of our students. And she is the one, hats off to her, because she was the one who was behind me to start with this session. And wonderful session, sir. Please give us certain ideas on some Indian books also, which our kids can refer. Sure मैम, I'll try my best कि लॉकडाउन में मैं सारी लिस्ट ऑफ बुक्स रेडी करके स्टेविना मैम के साथ शेयर कर सकूं ताकि बच्चों को मिल जाए. Yes, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Namaskar.